ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ مجھے اس وقت شدید نیند آ رہی تھی، لیکن میری بیوی مجھے جگانے پر بضد تھی۔ میں اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ لہٰذا میں اپنی اسی کوشش میں تھا کہ وہ کسی طرح سے میری جان چھوڑ دے اور مجھے سونے دے، مگر وہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ پی لیں، آپ کی نیند جلدی سے بھاگ جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ پورا دن میں آفس میں کام کرتا رہا ہوں، تھکن سے میرا برا حال ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھیں کھول کر رکھ سکوں، اور تم مجھے جگانے پر بضد ہو رہی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ میری بات سن کر میری بیوی نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے میری یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی اور وہ اب مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن میں فی الحال اس سے کسی بھی قسم کا جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے جھگڑا مول لینے کا مطلب ساری رات اس سے بحث کرنا ہے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بحث کر سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ بالکل بھی نہیں پینا اور نہ ہی اب میں نے تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ جہاں تک تمہاری خواہش کی بات ہے تو ایک لمبے عرصے سے تمہاری خواہشات کو پورا کرتا آ رہا ہوں، ابھی مجھے آرام کرنے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو مجھے شدت سے اپنے رویے کا احساس ہوا۔ میں نے اس سے کچھ زیادہ ہی سخت لہجے میں بات کر دی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے پیار سے اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتا اور اسے سمجھاتا، وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن وہی بات، مجھے بہت ہی شدید نیند آئی ہوئی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ساری رات کمرے سے باہر رہی ہوگی اور روتی رہی ہوگی۔ اگر میں بھی اپنا کیا کرتا؟ اپنی اس عادت کی وجہ سے میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ میں ذرا سا کام کر لیتا تھا تو مجھے بہت زور کی نیند آ جاتی تھی، جس پر میرا اپنا بھی کنٹرول نہیں تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آخر اپنی بیوی کو کیسے مناؤں۔ مجھے پتا تھا کہ اس کو صرف ایک ہی چیز راضی کر سکتی ہے، اور وہ میرا دیا ہوا وقت ہے۔ میں کچن میں گیا تو وہ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سر گرائے ناشتہ ہی بناتی رہی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تنگ کرتا یا اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتا، اچانک ہی امی وہاں پر آ گئی، جس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہونا پڑا۔ امی نے آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ رات کے وقت تمہاری بیوی کمرے سے باہر کیا کر رہی تھی؟ امی کی بات سن کر میں نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی فکر مندی سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ میری بیوی نے یہ بات امی کو نہیں بتائی ہوگی۔ انہوں نے خود ہی اسے کمرے سے باہر دیکھ لیا ہوگا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ یہ سارا وقت کا کھیل ہے۔ دراصل میں اپنی بیوی کو رات کے وقت ٹائم نہیں دے پا رہا، جس کی وجہ سے یہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، میری بیوی ہی بول پڑی اور کہنے لگی، دراصل امی میری طبیعت کافی خراب تھی، میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا، اسی وجہ سے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے صحن میں آ گئی اور وہاں پر چہل قدمی شروع کر دی۔ امی اسے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، چلو تم لوگ ایسا کہہ رہے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس نے دوبارہ مجھ سے نظریں پھیر لی تھی۔ اس کا یہ بے رخی کا انداز مجھے بہت بے چین کر رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیسے مناؤں۔ ایک تو مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، امی بھی یہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں جانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں ایک پلان آیا۔ میں نے ایک ہاتھ میں اپنا ٹفن اٹھا لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ میری پانی کی بوتل کچن میں ہی پڑی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بوتل جلدی سے لے کر باہر آ جاؤ۔ چونکہ امی بھی وہاں پر موجود تھیں، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پیار سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اپنے رات کے رویے پر۔ مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج پوری رات تمہارے نام ہی کروں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس کی یہ مسکراہٹ ہی مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ اس دن میرا آفس میں بہت مشکل سے وقت گزرا تھا، کیونکہ صبح صبح ہی مینیجر نے بہت سارے کام میرے سر پر لا کر رکھ دیے تھے۔ میں مسلسل 4 گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میری کمر میں
बुरी तरह से दर्द होने लगा था। मेरी आंखें भी नींद से बंद होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरी बीवी दोबारा मेरी वजह से नाराज हो जाए, लेकिन मैं दोबारा से ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से दुकान पर गया और वहां से एनर्जी ड्रिंक ली। मैं सोच रहा था कि ये पीने के बाद मेरी नींद उड़ जाएगी, लेकिन मुझे और शिद्दत से नींद आने लगी। अपनी इस नींद से मैं बहुत ज्यादा तंग था। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, जहां पर इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। अचानक ही मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा मेरी बीवी की कॉल थी। दूसरी ही बेल पर मैंने कॉल उठा ली, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने तीसरी बेल पर कॉल ना उठाई तो वो गुस्से से कॉल काट देगी। उसने बेसब्री से कहा कि मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप ना जाने कहाँ पर रह गए, जल्दी से घर पर आए, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, दरअसल आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। मैं बस तकरीबन 1 घंटे के बाद घर पहुंच रहा हूँ। मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी। समझ नहीं आ रही थी कि घर जाकर मैं क्या करूँगा, अपनी बीवी को कैसे मनाऊंगा। अब मैं दोबारा से इसे नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो इसी बात पर मुझसे नाराज हो रही थी। मैं तो इस वक्त को पछता रहा था जिस वक्त मैंने शादी कर ली थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जालिम बीवी भी मिल सकती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से गर्ज थी। तकरीबन 1 घंटे का फासला तय करने के बाद मैं घर पहुंच गया। मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई थी। रास्ते में ही मुझे अम्मी मिल गईं। वो बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखकर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद ही वो घर के अखराजात गिनने लगी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके तमाम अखराजात के बारे में सुनूं और फिर इन्हें कोई मशवरा दूं। मैं गैर दिमागी से इनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त अपनी बीवी की तरफ ही अटका हुआ था। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपनी बीवी को देखा तो चंद लम्हों के लिए तो मैं हैरान ही रह गया। वो आसमान से उतरी हुई को परी लग रही थी। आज से पहले वो कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके साथ ही उसने सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। चंद लम्हे तक तो मैं यूं ही उसके चेहरे को देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इस कदर खूबसूरत हो सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज से पहले मेरी बीवी कभी भी इतनी खूबसूरती से तैयार नहीं हुई थी। वो मुझे देखकर शर्मा रही थी, जबकि मुझे उसे देखकर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज भी मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद वो एक अदा से मेरे पास आकर बैठी और फिर मुझसे पूछने लगी कि आपको ऑफिस में कैसा वक्त गुजरा है। मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मुझे एक बिस्तर मिले और मैं उस पर गहरी नींद सो जाऊं, जबकि अपनी बीवी की हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आज मेरी जान बख्शेगी। मैंने उसे कहा कि दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा है, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। इसके साथ ही उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के तासरात नमूदार हुए, जिसे मैं अच्छी तरह से नोट कर रहा था। उसने मुझे कहा कि आपको अपना सुबह का किया हुआ वादा याद है या नहीं? अगर नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपने वादा किया था कि रात का वक्त ज्यादा आप मुझे देंगे। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उसे कहने लगा, बिल्कुल मुझे अपना किया हुआ वादा याद है और मैं वो वादा निभाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे ज़रा देर के लिए लेटने दो, क्योंकि उसकी वक्त मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सी फिक्रमंद हो गई, क्योंकि मुझे अक्सर ही कमर में शदीद दर्द हो जाता था और वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता था। कभी कभार तो सारी सारी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं पाता था। मेरे इस दर्द से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसी वजह से वो मुझे भी ये नहीं कह सकती थी कि मैं दोबारा उससे कोई बहाना बना रहा हूँ। वो फिक्रमंद हो गई और मुझे कहने लगी कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके लिए दूध का गिलास लेकर आ जाऊं। इससे आपकी नींद भी उड़ जाएगी और आपको कमर का दर्द का भी आराम आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि फिलहाल मेरा सबसे अहम मकसद किसी तरह से अपनी इस नींद को उड़ाना था, क्योंकि मैं दोबारा से अपनी खूबसूरत बीवी को नाराज नहीं करना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद वो कमरे से बाहर चली गई, जबकि मैं उसके इंतजार में बिस्तर पर ही लेट गया। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैं मुसलसल खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में जीत मेरी नींद की हुई। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। मेरी आंख खुली तो इस वक्त मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा लिया। ना चाहते हुए भी मैं अपनी बीवी को दोबारा से नाराज कर चुका था। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलता और ढूंढता कि मेरी बीवी कहाँ पर है, अचानक ही वॉशरूम का दरवाजा खुला। मेरी बीवी बाहर निकली। हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने कल रात के बारे में सोचने की कोशिश की और याद करने की कोशिश की कि क्या कल रात कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से मेरी बीवी इतनी खुश हो रही थी। सोचने के बावजूद भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर उसकी इस कदर खुशी की वजह क्या हो सकती है? मैंने उससे इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिर खामोश हो गया। न जाने क्यों
मुझे ये लग रहा था कि शायद उसकी खुशी के पीछे बहुत से ज़्यादा गुस्सा छुपा हुआ है और वो थोड़ी ही देर बाद उसका इजहार करना भी शुरू कर देगी। मैं अपने ज़हन में अल्फाज ढूंढ रहा था जिनसे मैं अपनी बीवी को मुखातिब करूं और उससे कोई बात करूं। इससे पहले ही मेरी बीवी ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछने लगी कि अब आपकी कमर का दर्द कैसा है। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और तसल्ली दी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो खामोश हो गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपनी कंघी करने लगी। मैं खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये मेरे साथ नाराज़ है या ये जानबूझकर मुझसे ऐसे बात कर रही है ताकि ये मुझे अपनी गलती का एहसास दिला सके। लेकिन अब सोचने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मसला कहाँ पर आ रहा है। काफ़ी देर तक वो यूं ही मेरे पास आस पास घूमती रही और कमरे के सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखती रही। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्योंकि कल मैंने उसका मूड बहुत बुरी तरह से ऑफ किया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कल रात किस वक्त उसने अपना लिबास तब्दील किया था और सोने के लिए लेट गई थी। मुझे तो ये भी अंदाज़ा नहीं था जो मैं कोई बात कर सकता। थोड़ी देर बाद वो मुझे कहने लगी कि मैंने आपके लिए नाश्ता बना लिया है, आप जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैं जो समझ रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही जागी है और फ्रेश होकर बाहर निकली है, मैं नहीं जानता था कि वो काफ़ी देर से जाग रही है और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। लिहाजा मैं जल्दी से बाहर टेबल पर जाकर बैठ गया। अम्मी मुझे गुस्सीली नज़रों से घूरने लगी। अम्मी को इस तरह से घूरता पाकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने तेज़ी से अपनी बीवी की तरफ देखा। मुझे यूं महसूस होने लगा था कि शायद मेरी बीवी ने अम्मी को मेरी शिकायत लगा दी है। मैं अपने जहन में मुख्तलिफ तरह की तजवीज़ें सोचने लगा था कि आखिर किस तजवीज़ के ज़रिए मैं अपनी अम्मी को तसल्ली दूंगा। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारा काम चोरी की आदत ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अम्मी की ये बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हैं। यानी मैं जिस बारे में खौफजदा हो रहा था, मेरी बीवी ने वो काम करके दिखा दिया था। मेरी बीवी ने मुझे आंख से इशारा किया और कमरे में जाने का कहा। मैं नाश्ता किए बगैर ही कमरे में चला गया। अब न जाने मेरी अम्मी बीवी से क्या बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी औलाद किस वजह से नहीं हो रही। दरअसल तुम अपनी बीवी को वक्त ही नहीं देते। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा कि अम्मी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अम्मी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दरअसल उन्होंने कल रात दोबारा मेरी बीवी को कमरे के बाहर देख लिया था। अब वो मुझसे सवाल जवाब मांगने के लिए आ गई थी। समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें किस तरह से मुतमईन करूं। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए रजामंद ही नहीं थी। इसी वक्त मेरी बीवी दोबारा से कमरे में आ गई और अम्मी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आंटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। उसने बड़ी मुश्किल से अम्मी को मुतमईन किया था। अम्मी मुझे गालियां देती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और मेरी बीवी ही मौजूद थे। मैंने बेचारगी से इसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, अब तुम बताओ, इससे मेरा क्या कसूर है? मुझे हर वक्त ही नींद सताए रखती है और इसके साथ साथ मेरे जिस्म पर जब थकन तारी हो जाती है तो इसका उतरना मुश्किल ही नहीं, दम बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। उसने मुझे कहा कि आप किसी चीज़ की फिक्र ना करें, मेरे पास इसका इलाज मौजूद है, लेकिन आपको इलाज बनाने में मेरी मदद करनी होगी। मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम कौन से इलाज के बारे में बात कर रही हो। उसने मुझे बताया कि कल रात ही उसकी दोस्त ने उसे आलू बुखारे का शरबत बताया है। उसने उसे बताया था कि अगर इस शरबत को किसी को पिला दिया जाए तो वो शख्स 5 घंटे तक लगातार जाग सकता है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती और ना ही उसके जिस्म पर थकन तारी होती है। 5 घंटों के वक्त का सोचकर ही मेरा सर चकराने लगा। मैंने बेचारगी से अपनी बीवी की तरफ देखा, लेकिन अब वो मुझ पर रहम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने मुझे कहा कि पहले ही आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ उठा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं मज़ीद तकलीफ नहीं उठा सकती और अम्मी की बातों के जवाब दे देकर भी मैं थक गई हूँ। लिहाजा अब आपको ये काम करना ही होगा। उसने मुझे शाम को आलू बुखारे लेने के लिए बाजार भेजा। जब मैं आलू बुखारे ले आया तो वो पहले ही किचन में मौजूद थी। उसने अपने हाथों में मुख्तलिफ चीज़ें उठा रखी थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें यकीन है ना कि ये शरबत काम करेगा, कि ऐसा ही ना हो कि मेरे जिस्म में कोई और मसला पैदा हो जाए। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, फिक्र मत करें, आपके इस मसले से बड़ा कोई भी मसला नहीं है और अगर कोई और मसला पैदा हो भी जाता है तो इसका इलाज मैं खुद कर लूँगी। मैं बेचारगी से उसके करीब ही बैठ गया और उसे शरबत बनाते हुए देखने लगा। मुझे दोबारा से थकन का एहसास होने लगा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो रही है। उसने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन फिर मुझे कहने लगी कि फ़िक्र मत करें, अभी ये सिर्फ 2 ही घंटे आपको थकन का एहसास होगा। इसके बाद जब मैं आपको ये शरबत पिलाऊंगी तब आपको दोबारा से तंदुरुस्ती महसूस होगी। उसकी बातें और उसका जोश देखकर मुझे लग रहा था कि उसे इस शरबत पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मज़ीद बताया कि उसकी दोस्त का शौहर भी ऐसा ही था। वो उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था।
और ना ही वो काम काज की तरफ ध्यान दे पाता था। लेकिन जब से उसने अपने शौहर को ये शरबत पिलाया, तब से वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे उसकी दोस्त के शौहर पर रहम आने लगा, लेकिन मैं उसके सामने इस बात का इज़हार करके उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से ही तो वो मानी थी। उसने शरबत बनाकर रख दिया और मुझे कहने लगी कि वो घंटे तक हमने इसे यूँ ही रहने देना है। 2 घंटे बाद मैं ये शरबत लेकर आपके पास आऊँगी। आप बस तैयार रहिएगा। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और शुक्र अदा किया कि मुझे कमरे में जाने का मौका मिला। अब मैं दोबारा से सोने की तैयारी कर रहा था। 2 मिनट के अंदर-अंदर मेरी दोबारा से आँख लग गई। मुझे अपनी बीवी की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। अचानक ही किसी ने मेरा कंधा ज़ोर से हिलाया। मैं जल्दी से बिस्तर से उठ बैठा। एकदम ही उठने की वजह से मेरी कमर में दोबारा से दर्द होने लगा था। मुझे दर्द से कराहता देखकर वो कहने लगी, "बस ये दर्द आखिरी बार बर्दाश्त करें, क्योंकि जो शरबत मैं आपके लिए लाई हूँ, ये पीने के बाद आपके सारे दुःख दर्द गायब हो जाएँगे।" ये कहकर उसने आलू बुखारे का शरबत मेरे सामने किया। न जाने क्यों मुझे वो पीते हुए डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी का ये नुस्खा गलत साबित ना हो जाए और मुझे कोई और कमज़ोरी लाक ना हो जाए। मैं ना चाहते हुए भी इस शरबत से ले लिया, क्योंकि इसी वक़्त मेरी अम्मी कमरे में दाखिल हो गई और मुझे गुस्से से घूर रही थी। वो शरबत पीने के बाद वाक़ई में काफ़ी तंदुरुस्त महसूस करने लगा था। मेरी नींद भी गायब हो चुकी थी और मेरी कमर का दर्द भी आराम आ चुका था। इस वक़्त मैंने अपनी बीवी को इसके बारे में नहीं बताया। मैंने उसे कहा कि थोड़ा वक़्त तो लगेगा ही असर होने में, लिहाज़ा आप जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। रात के वक़्त मैं अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता था। मेरी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, "देखा, मैंने कहा था ना कि इसकी वज़ह से आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। देखा, उसने असर करना शुरू कर दिया।" उसको हँसते मुस्कुराते देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा। वाक़ई ये शरबत तो बहुत ही ज़्यादा जादुई था। थोड़ी ही देर बाद वो कमरे से निकल गई, लिहाज़ा मैं भी बैठकर ऑफ़िस का काम करने लगा। काफ़ी अरसे से मैंने जो काम छोड़ा हुआ था, अब मैं इसको पूरी दिलजमी से कर रहा था। रात 9 बजे का वक़्त था जब वो कमरे में आई। मुझे काम करता हुआ देखकर वो मुस्कुरा उठी। उसके साथ ही वो कमरे में रखी हुई पेंटिंग्स लेकर मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, "चलें अब जल्दी से ये पेंटिंग मुकम्मल करें।" दरअसल मुझे बचपन से ही पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। मैंने एक अरसे पहले अपनी बीवी की पेंटिंग शुरू की थी, लेकिन थकन की वजह से और कमर की दर्द की वजह से वो पेंटिंग मुकम्मल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बीवी अक्सर ही मुझसे नाराज़ रहती थी। उसने अब एक नई ज़िद करना शुरू कर दी थी कि वो लाल साड़ी में भी एक पेंटिंग बनवाएगी। लेकिन इस दिन भी जब मैं घर आया तो काफ़ी थका हुआ था, लिहाज़ा उसकी पेंटिंग मुकम्मल किए बगैर ही थक गया और सो गया, जबकि अब मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी। मेरी प्यारी बीवी मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं पूरी दिलजमी के साथ उसकी पेंटिंग बना रहा था। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी दोबारा से पुरसुकून हो गई। अब मेरी बीवी पहले की तरह मुझसे शिकायत नहीं करती थी। अब उसकी तमाम बातें मैं उसके कहे बगैर ही मान लेता था। मेरी अम्मी की भी तमाम शिकायतें दूर हो गई थी। मैं अब इनके साथ भी वक़्त गुज़ारने लगा था। ऑफ़िस में भी अब मेरा वक़्त अच्छा बहुत गुज़र रहा था। पहले तो मैं सारा वक़्त सोया ही रहता था या फिर थका-थका सा रहता था। अब जब से आलू बुखारे का शरबत पिया, तब से मेरी ज़िंदगी सँवर गई थी। मेरी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ दूर हो गई थी। 1 ही साल के बाद अल्लाह ने मुझे एक चाँद-सी बेटी भी दे दी, जिससे मेरी ज़िंदगी तो अब मुकम्मल हो गई थी और मैं पुरसुकून हो चुका था।